Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to the science class for class 7th, and today we are going to learn the remaining thing of chapter 10, that is respiration in organisms. So without wasting time, let's get started. But before proceeding to today's class, let's quickly revise what we have learned so far. So we have learned that all the living and non-living things, all the living and the non-living, living and non-living things, they require some kind of energy to perform some kind of action. Okay, if they are doing some kind of work, so they need some energy. Okay, yes. So for example, like the bicycle, the bikes, okay, the cars, the trucks, the metros, the railways, the aeroplanes, okay, they all need some kind of energy. Okay, all they are non-living and they do some work and they need some kind of energy. And from where they get energy? They get from the crude oil, they get from the petroleum product, crude oil or petroleum product. Okay, or we can say the petrol, diesel, gasoline, all these things are the sources of energy for non-living things. Okay, yes, we human and plants, okay, and animals, we get energy फ्रॉम द फूड वी ईट. जो भी हम लोग फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है. ओके, यस. कैसे एनर्जी मिलती है? जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन इट फॉर्म ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज. और जब ये फूड जो हमारा ग्लूकोज में चेंज हो गया है सिंपल सब्सटेंस में, ये ऑक्सीजन के साथ में जब कंबाइन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर बनता है. ओके, यस. एंड दिस हाउ वी गेट द एनर्जी. ओके, यस. द प्लांट्स आल्सो दे यूज सनलाइट, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे यूज वाटर. ओके, एंड दे प्रोड्यूस glucose, that is the sugar, and oxygen. Okay, and this whole process is called photosynthesis. You have learned previously. Okay, yes. So let's move on. So we learned that in respiration process, food is used, energy is produced, and exchange of gases occur. Okay, yes. Then we saw that the photosynthesis and cellular respiration or cell respiration is both are opposite to each other. Okay, how they are opposite? So in photosynthesis, light energy, that is sunlight, is used. Some kind of energy is being used. कुछ तरह की एनर्जी यूज हो रही है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, दैट इज केमिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस. ओके, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस, ऑक्सीजन जो होता है प्रोड्यूस होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है. ठीक है, जो CO2 है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है. ओके, सो दिस हाउ दे बोथ आर अपोजिट. ओके, यस. देन वी सॉ द रेस्पिरेशन, दे आर टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक. द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज नॉट यूज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. देन वी सॉ the differences in aerobic and anaerobic respiration. Then we saw the process of respiration, that the process of respiration involved two things, that is the external breathing or external respiration, then in cellular respiration or internal respiration. Okay, yes. Then we saw that the combustion is very much similar to respiration, but they both differ from each other. Okay, so this is today's topic, breathing. Okay, so what is breathing? So breathing is taking in air rich in oxygen, and giving out air rich in carbon dioxide. So this whole process is called breathing. Okay, yes. And this taking in air rich in oxygen is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation. Okay, yes. So in one breath, one inhalation, one exhalation constitute one breath. ओके, मीन्स एक ब्रीथ में, एक सांस में एक बार ऑक्सीजन लेते हैं और एक बार CO2
रिलीज करते हैं, और ये दोनों को मिला के होता है एक ब्रीदिंग। ओके, यस। देन जो ब्रीदिंग रेट होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? सो कोई भी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है, कितनी बार ऑक्सीजन ले रहा है और कितनी बार ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, बॉडी से निकाल रहा है, उसको CO2 निकाल रहा है, उसको कहेंगे ए ब्रीदिंग रेट। ओके, सो यूजुअली नॉर्मली जो 15 to 18 जो होता है ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है। दैट मीन्स अ नॉर्मल पर्सन वाइल सिटिंग और वाइल वॉकिंग he or she breathe 15, 16 or 17 or 18 or 19, between these range they breathe. Okay, yes. So this is a breathing while in a normal usual. Okay, but when we do heavy work or we run fast or we exercise. Okay, so this breathing rate become faster. Okay, this breathing rate increases to 25 times. Okay, मीन्स 1 मिनट में हम लोग जहाँ पे 18 तक ब्रीथ करते थे, हम लोग 25 टाइम्स ब्रीथ कर रहे हैं 1 मिनट में। ओके, यस। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट में कितने टाइम्स एक पर्सन ब्रीथ कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। ओके, यस। नेक्स्ट इज हाउ डू वी ब्रीथ। सो हमारे बॉडी के अंदर कैसे ब्रीदिंग होता है, द होल A to Z प्रोसेस कैसे होता है, दैट विल सी हियर। ओके, सो व्हाट हैपन दैट वी टेक एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द nasal passage. Okay, then it passes through the nasal cavity, and then it enters to the trachea. What do you mean by trachea? Trachea is the windpipe. Okay, trachea is the windpipe. Okay, trachea is the windpipe. Okay, then from windpipe it enters into bronchi. Okay, BRONCHI. Bronchi means 2 bronchi. Okay, 2 bronchi. This trachea divide into 2 bronchi. Okay, one is called bronchus. Okay, so this one pipe will be called as a bronchus and 2 pipes will be called bronchi. Okay, then this bronchi again divides and redivides into finer and small tubes. Those are called bronchioles. BRONCHIOLS. Bronchioles. Okay, and then these bronchioles, this is a bronchiole. Okay, and then these bronchioles एंड विद अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये लास्ट में एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह के स्ट्रक्चर में फिनिश हो जाता है, यानी लंग्स के लेयर में ये जाके ऐसे फिनिश हो जाता है। ओके, यस। एंड फ्रॉम देयर दे हैव अ फाइन दिस कैपिलरी नेटवर्क, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, यहाँ पे मतलब ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और ये जो एयर की जो पाइप्स है वो हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें से CO2 ये जो पाइप्स है, जो हमारी विंड पाइप है उसमें आ जाता है, और हमारे विंड पाइप में से जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से जो हमारे बॉडी में ब्लड में जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैरी होता है। ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको ले जाया जाता है, और वहाँ पे इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, यस, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाएगा तभी तो ये कंबाइन होगा हमारे फूड के साथ में, और जब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा देन आवर बॉडी विल प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, यस। Okay, one more thing is that when we take in oxygen, जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं, एयर को इनसाइड लेते हैं, जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हमारी जो रिब्स हैं दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, तो ये जो रिब्स हैं ये ऊपर जाती हैं, और ये एक जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है। ठीक है, ये नीचे जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है। ओके, इट क्रिएट अ एम्प्टी स्पेस। ओके, एंड देन दिस आवर लंग्स फिल्ड विद द एयर। जो हमारा लंग्स है वो एयर से फिल हो जाता है। ठीक है,
देन वाइल एक्सेलेशन, जब हम लोग CO2 बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि जो रिब्स है जो कि आउटवर्ड और अपवर्ड गई थी वो इनवर्ड और डाउनवर्ड आती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो इट कम्स अपसाइड, ओके, जो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्पेस कम हो जाता है और जो एयर फील्ड है, जो CO2 फील्ड है हमारे लंग्स में, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ओके, यस। Okay, one more thing that the air which we breathe, it would contain all components of air. Okay, you know that in air there is a CO2 also, there is O2 also, there is nitrogen also. Okay, so the air which we take, it has a more quantity of oxygen. And that is why we say that we take oxygen. ओके, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम लोग एक्सेल करते हैं, सो उस एयर में भी ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और अदर कंपोनेंट वाटर वेपर भी होता है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है और CO2 का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब ब्रीद आउट करते हैं तो हम लोग CO2 बाहर रिमूव करते हैं, ओके, यस। So that's all. I hope you will have understood. Okay, if you have any doubt, please ask. And here you have some question. Try to attempt it. Explain the process of breathing in humans. Okay, so breathing in human आपको वही explain करना है कि starting हम लोग कैसे air we take it, okay, and how it goes into our lungs, okay, through what the organs, okay, and how the CO2 is being given out, okay, और फिर CO2 को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, यस. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग. बाय बाय.